ठीक है, one is known as inheritance, another is known as heredity. So Mendel was known as the father of genetics, and he gave three laws, and these laws are principle of dominance is the first law, second one is principle of segregation, and third one is principle of independent assortment. ठीक है बेटे, so we are starting with this chapter, chapter 5, principle of inheritance and variation. So here we are going to study about Mendel's observation, that how Mendel find the transmission of characters in different generations, and for his research he has selected the garden pea plant, which is generally growing in his garden, and by observing the growth of that pea plant and different generations in that pea plant, on the basis of that Mendel has given these three laws. Okay, we will also going into detail about the inheritance of one gene, okay, which is also known as the monohybrid cross. ठीक है, monohybrid cross means when we study the inheritance, or you can say transmission of one character or one gene at a time, then it is known as a monohybrid cross. Another is inheritance of two genes. If I am saying inheritance of two genes, this means here I am talking about the dihybrid cross. Okay bete, so dihybrid cross में we always study the inheritance of two character at a time. And इसके अलावा आपको कल भी बताया था, we will also here go to study about the process of sex determination. What is the method of sex determination in case of human beings, in case of insects, and in case of birds. ठीक है, तो in human beings में you know that कि male जो है they are heterogametic in nature and they produce two type of sperms. These sperms may either contain X chromosome or may contain Y chromosome. Okay बेटे, तो in case of insects जो है they are also producing two type of sperms, but one sperm it contains the X chromosome, whereas no chromosome is present in the other sperm. So here the type of sex determination in case of insect is exo type of sex determination. ठीक है बेटे, इसके अलावा वो कहते हैं कि जो बर्ड्स हैं उनके अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो उसमें जो सेक्स है उसके लिए वो कहते हैं कि टू क्रोमोसोम्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर खास बात क्या है, व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट दिस, कि यहाँ पे जो फीमेल होती है, ठीक है, कैसा नेचर रखती है यहाँ पे फीमेल, तो फीमेल जो है यहाँ पे हेट्रोगेमेटिक होती है। वैसे हमेशा आपने क्या स्टडी किया है कि जो मेल्स होते हैं वो हमेशा हेट्रोगेमेटिक होते हैं, बट इन केस ऑफ बर्ड्स फीमेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक है, और फीमेल बर्ड जो है वो टू टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, टू टाइप ऑफ एग्स फॉर्म करती है, जिसमें दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, वन टाइप ऑफ ओवम दे कंटेन द Z टाइप ऑफ क्रोमोसोम एंड अदर कंटेन द W टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। पर जो मेल्स होते हैं उसके अंदर दोनों ही कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, Z क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम इस बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा आई एम गोइंग टू टेल यू सम न्यू कंसेप्ट हियर, एंड दैट इज what do you mean by the term mutation. Yesterday I have also discussed in brief about mutation, that mutation is a random changes in the genetic material that sometimes due to some physical, chemical or biological kind of disturbances, ठीक है, क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं हमारे, यहाँ पे जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, या फिर आपको पता है कि डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम्स, तो क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है कुछ एब्रीवेशंस हो जाती हैं, ठीक है, कुछ अबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, जीन्स में आ जाती हैं या फिर क्रोमोसोम्स में आ जाती हैं, एजेंट कुछ भी हो सकते हैं म्यूटेशंस के, ठीक है, विच आर नोन एज म्यूटाजेंस, इट मे बी सम फिजिकल फैक्टर्स और इट मे बी some biological type of factors you can say, or it may be certain chemicals which act as mutagens. तो देखो, अगर मैं फिजिकल फैक्टर्स की बात कर रही हूँ तो here I am talking about the abiotic things, ठीक है, तो उसमें there are so many different type of solar radiations that are coming from the sun, and one of them are the ultraviolet radiations. Ultraviolet radiations are also of two types, ultraviolet A and ultraviolet B. Or what is the important thing about them कि they have the deep penetrating power, ठीक है, you have learn in chemistry about the electromagnetic radiations. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती है ना, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए डीपली आपके स्किन में चले जाती हैं वो,
and in this way they enter into your cells, and cells में क्या present है, nucleus, and nucleus में chromosome, and chromosomes के अंदर क्या present है, DNA. ठीक है बेटे, तो इन DNA के जो bases होते हैं ना, nitrogenous bases, उनको ये क्या कर देती हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से जो है कई बार जीन्स जो है वो डिलीट हो जाती हैं, तो म्यूटेशंस, पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं, and if sometimes they cause you can say alterations or damaging of the chromosome, then such type of mutations, they are known as the chromosomal mutations. So mutations are broadly divided into two types, may be point mutations, or you can say gene mutations, and other type of mutations are known as the chromosomal mutations. Okay, but we will also study about linkage. As the name itself indicate, linkage means that sometimes what you see that certain genes which are present on the same chromatid. ठीक है, आई एम सेइंग हियर कि कुछ कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो जीन्स होते हैं अगर वो सेम क्रोमेटिड के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो फिर वो जीन्स जो होते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जो भी जीन्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है, अगर उनकी पेयरिंग भी होती है तो उसके बाद वो सेपरेट हो जाती हैं, उनके एलील पेयर्स भी सेपरेट होती हैं, ठीक है, पर कई बार वो कहते हैं कि एक ही क्रोमेटिड पे प्रेजेंट जो जीन्स हैं वो आगे वाली जितनी भी जनरेशंस है ना उसमें साथ साथ चलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से व्हाट वी गेट एज अ रिजल्ट दैट हियर व्हाट वी ऑब्जर्व दैट कि इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो पेरेंटल हमारे पास कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, वही करेक्टर हमें पेरेंट्स के करेक्टर वहां पे ज्यादा नजर आते हैं अगर जीन्स लिंक्ड जीन्स हैं, और कई बार जो है हमें नॉन पेरेंटल करेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल नील मिलते हैं. अगर हमें पेरेंटल करेक्टर ज्यादा मिले हैं, नॉन पेरेंटल करेक्टर्स कम मिले हैं, तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं हुआ, और जीन्स कैसे जीन्स थे, लिंक्ड जीन्स थे, इस फिनोमेना को हम लिंकेज कहते हैं. तो लिंकेज भी टू टाइप्स का है, इट मे बी कंप्लीट लिंकेज, इट मे बी इनकम्प्लीट लिंकेज, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री दैट हाउ मच द जीन्स दे आर द लिंक्ड जीन्स. Okay, but in the last of the chapter we generally go through the different type of genetic disorders. तो genetic disorders जो है यहाँ पे कई तरह के हैं, ठीक है बेटे. तो some of the disorders that are related with genetics, they are caused because of certain problems, or you can say certain things that are related with the autosomes. ठीक है, कई बार autosomes जो है उसके mistakes की वजह से जो है कुछ disorders create होते हैं, or sometimes the disorders they are related with the sex chromosome. तो उसके बेसिस पे हमारे पास अलग अलग तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं. दिस में बी हीमोफीलिया. हीमोफीलिया इज आल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज, ठीक है बेटे. सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल डिजीज है, उसी तरह से हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड डिजीज है, ठीक है. आपको कभी सुनने में आया होगा कि एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है ये. ओके बेटे. फिनाइल क्यूटेनोरिया. फिनाइल क्यूटेनोरिया जो है it is also a type of an autosomal recessive kind of disease, ठीक है. थैलेसीमिया. थैलेसीमिया जो है वो भी एक जेनेटिक डिजीज है, ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज है, और इसके अलावा जो है so many disorders they are also seen in case of chromosomes that you will see in the end of the chapter, and some of the terms you get familiar with, and these may be aneuploidy, polyploidy, ठीक है. मैंने आपको बताया था कि during the process of crossing over what happened, the homologous chromosomes they pair together. You have learned in class 11, in crossing over the homologous chromosomes they pair together, they exchange their genetic parts and then they get separated, ठीक है. but the degree of the crossing over it varies according to the age of the person. मैंने आपको बताया था कि those person who get married at the later age of their lifespan, in those persons the pairing of the chromosome it can happen easily, but the non-disjunction of these chromosomes cannot happen. So sometimes the chromatids they join together, ठीक है. कई बार chromatids जो है वो separate नहीं हो पाती हैं, जुड़ी रह जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम की हमेशा हमारे पास 2 कॉपीज होनी चाहिए. डिप्लॉयड कंडीशन क्रिएट करनी है, तो कई बार डिप्लॉयड कंडीशन की जगह पे हमें ट्राइसोमी नजर आ जाती है, हमें टेट्रासोमी नजर आ जाती है. तो इसकी वजह से सम ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स और सिंड्रोम्स दे क्रिएट, ठीक है. यू आर वेरी मच heard about these kind of syndromes, Klein-Center syndrome, Down syndrome,
ठीक है। इसके अलावा जो है टर्नर सिंड्रोम के बारे में हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो डाउन सिंड्रोम जो है इसमें 21 क्रोमोसोम की 3 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है बेटे, फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम जो है वो XX रहते हैं ना, तो ये वाला जो पर्सन होता है क्लाइनफेल्टर वाला, इसमें जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पर जो है सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा आ जाते हैं। ओके बेटे, टर्नर सिंड्रोम जो है उसके अंदर जो है फीमेल के लिए XX क्रोमोसोम रिक्वायर्ड है, तो इसमें एक X क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, तो सिंगल X क्रोमोसोम इज देयर, सो मेकअप ऑफ द पर्सन इज X. Okay, so this is a brief introduction of the chapter. So here I am going to start the chapter. So what is given in the introductory part? So in the introductory part it is written that whenever you see any plant, any animal, you always saw some certain degree of similarity among these to their parents. ठीक है, जब भी हम किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को देखते हैं तो आप हमेशा देखते हो कि अगर हम किसी बर्ड को देख रहे हैं, किसी एलिफेंट को देख रहे हैं, या ह्यूमन जो चाइल्ड है उसी को देख रहे हैं, तो बहुत सारी उसके अंदर सिमिलैरिटीज हैं. So there are some of the characters that are very much similar to their parents, but there on the other hand there are certain characters that are the unique character of that person only. So here what you see that if there are many similarities in the daughter generation to that of their parent generation, this means that something is transferred from parents to the offspring generation after generation. ठीक है बेटे, तो इससे ये पता लगता है कि अगर ऑफस्प्रिंग्स जो है वो कुछ आइडेंटिटी जो है अपने पेरेंट्स से मैच करती है उनकी, तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स जो है उसमें से कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो कि ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होती आ रही है, और जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. So this is the reason we have shared also many similar characters with our parents. ठीक है, कई बार जो है किसी पर्सन का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल उसके पेरेंट्स जैसा हो सकता है. समटाइम्स द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दे हैव a very large similarity with the parents. Sometimes there is a similar pattern you have heard in the voice of that person. ठीक है, कि इस पर्सन की जो वॉइस है वो उसके फादर से मैच कर रही है या मदर से मैच कर रही है. कॉम्प्लेक्शन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पेरेंट्स से मैच करता है. ठीक है, बहुत सारी हमारी ऐसी हैबिट्स हैं जो एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स की भी हैबिट्स हैं. ओके बेटे, तो दिस मीन्स दैट देयर इज सम कैरेक्टर्स दैट आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स इनटू द ऑफस्प्रिंग्स. So if I am saying that characters, their transmission takes place from one generation to another, or in other words, from parents to offspring, this means certain thing is there that is responsible for the transmission of those characters. Okay, but the research was first done by the scientist, and his name was Gregor Johann Mendel, who was also known as the father of genetics. And he did a very long-lasting research on the transmission of characters from one generation to another, which is also known as inheritance or heredity. So here he has introduced a new branch of biology, and that is known as genetics. So what is genetics? It is a branch of science which deals with the study of heredity and variations. ठीक है बेटे, एक ऐसा साइंस जिसके अंदर हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं. तो व्हाट इज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस? You can say simply inheritance means transmission of characters from parent to the daughter generation. Okay, or you can say that it is a transmission of characters from one generation to the subsequent generation of the living beings. But what I am saying that we can easily say that so many characters are having very much similarities with our parents, but there are only few characters that are not similar to our parents, and that are our own characters. So this means that not all the 100% characters they are transmitted from the parents to the offspring. ठीक है, 1 or 2% characters are such type of characters that are actually the differences by which we differ from our parents, and these are known as the variations. Okay, but so there at that time when Mendel did his research, he has given one name to those agencies that is responsible for transmission of these characters, and he has introduced the term at that time factor. So what Mendel said, Mendel ने ये कहा कि फैक्टर्स जो हैं वो एजेंट्स हैं किसके, हेरिडिटी के.
ठीक है, फैक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होती हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स के करेक्टर जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं। और ये जो फैक्टर्स होती हैं उनके ऊपर एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट होता है। तो इसी वजह से 100% करेक्टर्स जो डॉटर जनरेशन के हैं वो पेरेंट्स जनरेशन के साथ मैच नहीं करते। 1 और 2% करेक्टर्स जो हैं उसके यूनिक करेक्टर होते हैं, और वो वेरिएशंस की वजह से होते हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट जो है या फिर अदर काइंड ऑफ जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में, उससे अफेक्टेड होती है। ओके बेटे, सो हमेशा वो कहते हैं कि इनहेरिटेंस और वेरिएशंस जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। तो इनहेरिटेंस में हम कुछ इनहेरिटेड करेक्टर्स जो है अपने पेरेंट्स से एज इट इज ले लेते हैं, पर कुछ करेक्टर्स जो हैं वो हमारे अंदर अपने यूनिक करेक्टर्स होते हैं जो वेरिएशंस की वजह से इंट्रोड्यूस होते हैं। ओके बेटे, तो हियर द डेफिनेशन ऑफ द inheritance is given in your book. So inheritance is the process by which characters are passed from one parent to progeny. Progeny term here I am using for the daughter generation. Okay bete, so this is the basis of heredity. So what is variation? Variation is the degree by which one offspring, or you can say progeny generation, it differ from their parents. ठीक है, वो करेक्टर्स जो कि प्रोजेनी जनरेशन में प्रेजेंट है, वो डिफरेंसेस जो प्रोजेनी जनरेशन में प्रेजेंट है और जिससे डॉटर जनरेशन या प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स से डिफर करता है, उसको हम वेरिएशंस कहते हैं। ओके बेटे, तो उसके बाद वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव द नॉलेज ऑफ दिस जेनेटिक्स or these transmission of characters as well as variations since long. ठीक है, they have a little bit knowledge as early as 8000 to 1000 BC. ठीक है, 8000 से 1000 BC पहले भी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो वेरिएशंस के बारे में जानते थे, and they know that these variations they generally happen because these human beings they are the sexually reproducing organisms. ह्यूमन बीइंग्स का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और लोगों को मालूम था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का जिससे हमेशा डिफरेंसेस या वेरिएशंस जो हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। ठीक है, बिकॉज दे न्यू द कंसेप्ट ऑफ दीज वेरिएशंस, सो दे हैव आल्सो यूज्ड दिस मेथड ऑफ वेरिएशंस फॉर ऑब्टेनिंग सुपीरियर वेराइटीज इन केस ऑफ एग्रीकल्चर और इन प्लांट्स आल्सो। ठीक है, तो उसमें इस मेथड को उन्होंने यूज करके उन्होंने पुराने टाइम में जो प्री हिस्टोरिक मैन था, ठीक है, उसने सुपीरियर वेराइटीज जो है उसको इंट्रोड्यूस किया एग्रीकल्चर के फील्ड में भी। तो इसी तरह से जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके बारे में प्री हिस्टोरिक मैन जो है वो काफी टाइम पहले से ही जानता था। दे ऑलवेज सेलेक्ट such type of plants or such type of organism which have desirable character, then they done the interbreeding among them, and in this way they always obtain the superior characters. Okay, तो ऐसा नहीं है कि वेरिएशन जो है it is a new concept. The prehistoric man has enough knowledge about this and he has exploited this knowledge for the purpose of obtaining superior varieties with desirable characters in case of plants as well as animals too. ठीक है, तो you know that in case of plants can be obtained superior varieties which have some of the desirable characters, and the method is known as plant breeding. And in case of animals, when we obtain superior breed, ठीक है, by done interbreeding among the superior animals with desirable characters, the method is known as artificial hybridization. ओके, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, these all comes under this animal breeding. Okay beta, I am on page number 72, and what here is given here, he has introduced some of the important terms, ठीक है, जो आपको बार बार इस चैप्टर में सुनने के लिए आ सकती हैं। So I have already told you that the full name of Mendel was Gregor Johann Mendel. He was known as the father of genetics. So here I am going to tell you in brief about the definitions or the words which generally come in this chapter. Number one is heredity. What is heredity? It is the process of inheritance of characters from one generation to subsequent generation. ठीक है, जिस प्रोसेस से करेक्टर्स जो हैं वो एक जनरेशन से सब्सिक्वेंट जनरेशन के अंदर पास होते रहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज हेरिडिटी। एंड अदर टर्म्स में हम उसको इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। So these characters they always pass from the parent to the progeny generation, you can say daughter generation or offsprings. Another term that we use in this chapter is variations.
What are variations? Variations are the differences which are found in the offsprings or the progeny generation, or you can say it is the degree by which the progeny generation it differs from their parents. So 1 or 2% characters are unique to the progeny generation. It is not found in the parent generation. Another thing is genes. So genes are generally considered as the units of heredity. Though at the time of Mendel has not used this term genes. There was another scientist whose name was Watson, and Watson has used the term gene in place of factor. At that time, Mendel has used the term factor for this. So where these genes are located? So in the earlier times, when Mendel has discovered the laws of inheritance, at that time the discovery of the microscope was not there. Okay, Leeuwenhoek has done that discovery later after so many years after Mendel. So at that time, Mendel is not able to tell you the location of these genes, that where these genes are present. But after the discovery of the microscope by Leeuwenhoek, he has used one crude type of microscope, and the scientists that are coming after, they have find out the location of these genes, and these genes are the minute, you can say, bodies which are actually located on the chromosome. तो आज के टाइम में हम कई बार जीन्स की जगह पे टर्म यूज करते हैं सिस्ट्रॉन, ठीक है बेटे। अब तक हम आपको छोटी क्लासेस में ये बताते आ रहे हैं कि दीज जीन्स आर द बॉडीज व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, पर अब आप और ज्यादा जानेंगे जीन्स के बारे में कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट तो होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हैं, और क्रोमोसोम में भी कहाँ प्रेजेंट है? आपको पता है कि हर एक क्रोमेटिड के अंदर क्या रन कर रहा है? डीएनए रन कर रहा है, ठीक बेटे, और उस डीएनए पे हम आपको बताते आ रहे हैं कि जीन्स प्रेजेंट है। पर अब आप और ज्यादा जानेंगे जीन्स के बारे में कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो डीएनए है उसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट है। डीएनए का ही कुछ ऐसा पार्ट है जो प्रोटीन्स के लिए कोड करता है और उसी को हम जीन्स कहते हैं। ओके बेटे। Now another thing is progeny. What is progeny? So here the term is used generally for the daughter generation or the offspring. Okay children, genotype as the name itself indicates, when we study the genetic makeup of an organism, then it is known as a genotype. ठीक है, for example you have studied in class 10th also, if we done a monohybrid cross, you can say for this seed color for pea plant, ठीक है, तो आपको पता है कि सीड कलर पी प्लांट के अंदर जो है वो दो तरह का हो सकता है, इट में बी येलो सीड कलर और इट में बी ग्रीन सीड कलर। तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि कैपिटल वाई डेजिग्नेट्स फॉर येलो सीड कलर एंड स्मॉल वाई फॉर ग्रीन सीड कलर, ओके बेटे। सो हियर आई एम यूजिंग दिस अल्फाबेट्स कैपिटल वाई, तो एक वाई जो है ना यहाँ पे एक एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है जीन की, यानी एक जीन के अंदर कितने एलील्स होते हैं? 2 alleles होते हैं, and if both the 2 alleles they are of a similar type, that means capital Y, so this means the condition is homozygous condition। और दूसरी तरफ अगर मैं ग्रीन कलर के लिए कहती हूँ कि दोनों ही एलील स्मॉल वाई हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन की बात कर रही हूँ। पर जब हम इसके बीच में क्या करवाएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, देन आप देखेंगे कि कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई आ जाएगी एंड स्मॉल वाई में से एक स्मॉल वाई आ जाएगी। तो F1 जनरेशन में मुझे जो डॉटर जनरेशन मिलेगी उसका मेकअप होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसमें एक एलील कैपिटल वाई है, एक एलील स्मॉल वाई है। तो यहाँ पे जो मैं एलील्स की बात कर रही हूँ वो एक्चुअली एलील्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? जीन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये एलील्स होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकती हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकती हैं, ठीक है बेटे। जैसे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होमोजाइगस है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो इस तरह से जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको स्टडी करते हैं, उसके जीन्स की, उसके एलील्स की स्टडी करते हैं, तो इट इज नोन एज जीनोटाइप। And what is phenotype? So phenotype is actually the external appearance of an organism, that how that organism it looks in the external environment, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ कि भाई कैपिटल वाई और कैपिटल वाई येलो सीड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर अगर दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी येलो सीड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट कि दोनों येलो जो है उसमें से होमोजाइगस वाला येलो सीड कलर कौन सा है एंड हेट्रोजाइगस वाला कौन सा है। ओके बेटे, तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनोटाइप और द एक्सटर्नल अपीयरेंस।
and both the genetic constitution here give me one character only, and that is the yellow seed color. Okay student, another thing is alleles. So you can say that what are alleles? Alleles are the alternative forms of a genes, two alternative forms of a genes. ठीक है, तो हमेशा जो जीन्स होते हैं ना वो कहते हैं कि दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स जो हैं उनके लिए कोड करते हैं। तो उसमें हमेशा एक जीन जो है उसके अंदर दो एलील्स होती हैं और एक एलील जो है वो हमेशा डोमिनेंट करेक्टर को रिप्रेजेंट करती है एंड अदर एलील जो है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द रिसेसिव करेक्टर। ओके बेटे, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एलील्स जो है वो टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं एक जीन्स की, जिसके अंदर एक एलील हमेशा डोमिनेंट करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी एंड अनदर एलील ऑलवेज रिप्रेजेंट द रिसेसिव करेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस क्या होता है? तो आपको मैंने बताया था कि होमोजाइगस कंडीशन का क्या मतलब है, द फॉर्म ऑफ ए ट्रेट इन विच बोथ एलील्स ऑफ ए जीन आर सिमिलर। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर एक जीन एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करे तो आपको पता है कि हाउ मेनी एलील्स आर देयर, टू एलील्स आर देयर, एंड इफ बोथ द टू एलील्स दे आर द आइडेंटिकल वन, दिस मींस द कंडीशन इज नोन एज अ होमोजाइगस कंडीशन। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं प्लांट हाइट की बात कर रही हूँ पी प्लांट के अंदर, तो आपको पता है कि कैपिटल टी हियर रिप्रेजेंट द होमोजाइगस टॉल करेक्टर, और अगर मैं स्मॉल टी ले लूं तो स्मॉल टी हियर रिप्रेजेंट द होमोजाइगस ड्वार्फ करेक्टर। But when both of these they are interbreed among themselves, then what you see a heterozygous character, it appears in the F1 generation. So here I have the makeup capital T small t, जो कि दिखने में तो टॉल प्लांट होगा, पर अगर हम उसका जीनोटाइप देखें तो उसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। तो यू कैन से हेटेरोजाइगस कंडीशन इज दैट कंडीशन, ठीक है, जिसमें दोनों ही एलील्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं होती है। तो हियर आई हैव रिटन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेट इन व्हिच बोथ एलील्स ऑफ ए जीन आर नॉट सिमिलर, द कंडीशन इज नोन एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके बेटे, उसके बाद देखो आपको बताया था कि हर एक जीन जो है इट हैज टू एलील्स, one allele always represent a dominant character and another allele always represent a recessive character. So what is a dominant characters? तो कहते हैं कि dominant character is actually the form of a trait. Trait word here I am using for character. I am saying the form of a trait that appears or seen more often and is found in F1 generation, that is actually known as the dominant character. ठीक है, अब हिंदी में समझेंगे तो कहते हैं कि करेक्टर जो है उसकी वो फॉर्म जो हमें सबसे ज्यादा नजर आती है F1 जनरेशन में, दूसरे के कंपैरिजन में वही करेक्टर असल में कौन सा करेक्टर है? डोमिनेंट करेक्टर है। और जनरली वो करेक्टर हमें किस में नजर आता है? तो वो करेक्टर जो है वो हमें हमेशा F1 जनरेशन में नजर आता है। ओके बेटे, अनदर इज रिसेसिव करेक्टर। तो यू कैन से दैट द फॉर्म ऑफ ए ट्रेट व्हिच इज नॉट सीन इन द you can say F1 generation, but it reappears in the F2 generation 3 times less than the dominant character. ठीक है, वो करेक्टर की वो फॉर्म जो कि अक्सर हमें नजर नहीं आती और F1 जनरेशन के दौरान वो हिडन रहती है, छिपी हुई रहती है, पर F2 जनरेशन जो है जब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है F1 वाली इंडिविजुअल्स में, तो उससे जो F2 जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसमें वो करेक्टर अपीयर होता है। पर एक चीज याद रखिए कि वो करेक्टर हमेशा डोमिनेंट करेक्टर से, ठीक है, डोमिनेंट करेक्टर हमेशा उससे 3 गुना ज्यादा होता है, 3 टाइम्स मोर होता है। तो वो करेक्टर कौन सा करेक्टर है? रिसेसिव करेक्टर है। ओके बेटे, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो कहते हैं कि इफ वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एट अ टाइम, अगर हम सिर्फ एक जीन जो है वो कैसे जनरेशंस में पास होता है उसको एक टाइम पे एक ही जीन को स्टडी करते हैं, उसके 2 एलील्स को ही स्टडी करती हैं, तो दैट कंडीशन इज नोन एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड व्हाट इज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस? तो कहते हैं कि हियर द डाइहाइब्रिड क्रॉस इज अ टाइप ऑफ ए क्रॉस वेयर वी सी द इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स एट अ टाइम। ठीक है, तो 2 जीन्स जो है उनको हम एक टाइम पे स्टडी करते हैं, यानी एक ही टाइम पे हम अगर एक जीन में 2 एलील्स हैं तो 2 जीन्स पे कितने एलील होंगे स्टूडेंट्स? 4 एलील्स होंगे। तो 4 एलील्स जो हैं वो कैसे जनरेशंस में पास होते हैं उसको स्टडी करते हैं, द कंडीशन इज नोन एज अ डाइहाइब्रिड कंडीशन। ओके बेटे, अनदर इज पुनेट स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर के बारे में जो है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इट इज अ काइंड ऑफ ए स्क्वायर बाय विच
ठीक है. Mendel has you can say Mendel has used this square at that time when he did his observations, because Mendel जो थे वो बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स की जो है वो भी नॉलेज रखते थे. तो जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की पी प्लांट के ऊपर, he has represented his observation in a graphical manner. So it is a kind of a square which is used by Mendel at that time, and it generally shows the graphical representation to calculate the probability of all the possible genotypes of offspring in a genetic cross. ठीक है. तो एक इस तरह का स्क्वायर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कितने तरह के पॉसिबल जीनोटाइप्स एक ऑफस्प्रिंग के लिए पॉसिबल हो सकते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. तो दिस पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट, and his name is Reginald C. Punnett. So in honor of the scientist, the square is known as Punnett square. And Mendel जो है उन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया Punnett square को और अपनी ऑब्जर्वेशन जो है उसको इस तरह से ग्राफिकल मैनर पे शो किया. ओके बेटे, आज बस यहीं तक करेंगे सभी स्टूडेंट्स. So I will send you this presentation in advance so that whatever we have learned that will not skip from your mind. Okay.